ठीक है, क्या बोलते हैं, मरणसति बोलते हैं। दिस इज वन ऑफ द most important meditation that Buddha has told to his own disciple. बुद्ध ने खुद अपने बहुत सारे डिसाइपल को इस मेडिटेशन करवाया है जो आज हम करने वाले हैं। दिस इज वन ऑफ फ्यू मेडिटेशन जो स्वयं बुद्ध ने निर्माण किया था या फिर बुद्ध ने सिखाया था अपने लोगों के लिए। ठीक है, आपने बहुत सारे ना पिक्चर्स देखे होंगे जहां पे बुद्ध को डेथ मैन के साथ मरे हुए लोगों के सामने है वो। I have that you have seen is many picture when Buddha is there with the dead body. People are crying. Okay. When you go to the different monasteries, right? Okay, you'll find about those picture. And this meditation is one of the most important meditation because this will take you and this will open, okay? This will open many anxiety away from you. This will free you from so many things. And this will open your mind because this is one of those meditation that Buddha had taught by himself. So I want you to sit somewhere or lay down somewhere comfortably. अगर आप बेड है या फिर पीछे कुछ चीज हो, at least you should be relaxing today. You can use your pillow or something. Yeah. Now I want you to close your eyes. Relax yourself, okay? Nicely. Take a deep breath for 5 times. और कल्पना करें कि imagine that all the tension is going away from you. Your physical body is becoming more relaxed and calm.
Relax the muscles. Relax your legs, knee, hips, every part of your physical body. Even relax your eyes. Relaxation is there in each and every part of your physical body. सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक अपने आप को रिलैक्स करें. It is totally okay, even if your mind is running. Every breath you take, you are becoming more relaxed and calm. Now, I want you to imagine that. मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें, यू आर एट योर ओन फ्यूनरल. आप अपने ही मौत के बाद जो फंक्शन होते हैं उस फंक्शन में हैं. यू कैन सी योर डेड बॉडी. आप अपने फिजिकल बॉडी को मरते हुए देख रहे हैं. सी द प्लेस वेयर यू वांटेड टू डाई. आप कहां पे जाके मरना चाहते हैं? कौन सी बेड के साथ, कौन सी कपड़े के साथ? See those people who want you to attending your funeral. See that your spirit is watching all of this thing. आपकी आत्मा सब चीज देख रहा है. आपकी मरे हुए फिजिकल बॉडी को भी, जो लोग हैं आसपास उन लोगों को भी. आप कहाँ पे मरना चाहते हैं वहां पे जाइए. जिस पीपल के साथ आप करना चाहते हैं, आई वांट यू टू दैट योर स्पिरिट is watching all of these things. See who is there. कौन कौन लोग हैं आपके फ्यूनरल में आए हुए हैं? Who are there? Who are there for you today? See the face of all those people. How do they feel when you are gone? How many people are crying for you? What is the reaction that people are having for your death? See all those things. I want you to feel that you are going on their physical body and feel those expression, those emotions for you. मैं चाहता हूं कि आप उनके शरीर के अंदर जाइए, जो फील कर रहे हैं उस चीज को भी फील करें. आपके मरे हुए शरीर को देखते हुए वो जो जो फील कर रहे हैं, देख लीजिएगा कि कौन कौन है. सी who are there, where is your physical body.
What are the ritual that is happening? उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा. I want you to go in their physical body and see how they are feeling. See that if they wanted to talk with you, if they wanted to share you something, through the mind. How do you feel? How are you feeling? It is okay to feel anything. You don't have to suppress. Just notice the feeling and the sensation. It's okay to feel. How many people are there? Who are they talking about you? What do you want to hear from them? How many people do you want to be there? You might want to give them a message about you. Don't let them feel a certain way. उनको जो आप मैसेज देना चाहते हो वो दे. जो आप बोलना चाहते हैं उनको बोलें. अगर आप उनको धन्यवाद देना चाहते हैं तो उनको धन्यवाद भी दें. और आपको कोई विशेष देना चाहते हैं, कुछ उनको गिफ्ट देना चाहते हैं, वो भी दे दें. I want you to feel how your physical body is lying there. कितना ठंडा है, उसकी क्या क्या रिचुअल हो रही है. And also I want you to feel the energy of the people, what they are telling about you, what they are saying about you. How many people are crying for you? How many people come to your funeral? And कल्पना करें कि they can feel your presence as a spirit. They can feel you. Tell them what you wanted to tell them. This is the last moment that you are telling all those people. Forgive all of them, those who has hurt you. It is totally okay. Let every people know what you think. सब लोगों को बता दीजिएगा कि आप उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं. उन लोगों को भी फॉरगिव कर दीजिएगा जिसने आपको हर्ट किया है, जिसने आपको तकलीफ दिया है. I want you to forgive all of them. I want you to be totally light before you go. कि मन में कोई कसक नहीं रह जाए. मैं चाहता हूं कि आप अपने
सब चीज उनको बोल दीजिएगा. Today is the last moment that you are going to say. Open all of your heart, open everything and tell them how much you care for them. Forgive all of them. Take your time and tell them whatever you wanted to tell them. उनकी माइंड में वो चीज बोल दीजिएगा. जिसको आप जो चीज बोलना चाहते हैं उनको बोल दीजिएगा. Let them feel the real you. जो चीज आपको बोलना चाहिए था आपने नहीं बोला था. Let them feel that today in this moment. Tell each and everything. Tells all the emotions. They can hear you. They can feel you. Thanks everyone from the deepest part of your heart to listening to you today, for coming here. Tell them each and everything. Forgive each and every one. Now, you can see that those people are taking your body. वो आपकी फिजिकल बॉडी को लेके जा रहे हैं. शमशान घाट में हो. Is the rituals, it is happening. Is your culture. See what they are doing with your physical body. वो आपको शरीर को जलाने के लिए जा रहे हैं या गाड़ने के लिए जा रहे हैं, उसको देखें. They are doing all their rituals. Now, this is the final moments before they burn your physical body, before they dig you. I want you to pray to the God as a spirit. You can see the light on the sky. आप आकाश में एक लाइट को देख पा रहे हो. Ask to God what you want in your next life. Whatever you ask today, that is going to happen in your life. That you did not get in this life, जो आपने इस लाइफ में नहीं पाया, जो आपने इस लाइफ में नहीं बताया.
जो आपकी फीलिंग्स थी, आपकी इमोशंस थी, आई वांट टू टेल दैट टू द गॉड. Ask for all the wishes. नेक्स्ट लाइफ में आपको क्या क्या चाहिए, किन किन लोगों के साथ चाहिए. Everything that you are asking, God is hearing you. वो आपको सुन पा रहे हैं. Whatever you wish, that will come true. जिसको आप फॉरगिव करना चाहते हैं उसको भी बोल दीजिएगा. जिसको आप भूलना चाहते हैं उसको भी वो भुला दीजिएगा. Now this is only you. You are now directly connected to the God. He can hear you. वो आपको सुन सकते हैं. You can see him. You can talk to her. You can talk to him. Maybe Kali is listening to you. She is giving you the blessing. The God is giving you the blessing. That all your wishes will come true. Now, slowly, your physical body has been collapsed. आपकी फिजिकल बॉडी को जला दिया गया है या गाड़ दिया गया है. You can see yourself becoming more lighter and lighter and lighter. All the suffering has been finished and the happiness that you finally is with the God. Pure, younger, full of energy, lightness, happiness, peacefulness, calmness, with every wishes is coming true. All the people are going back to their house. You are seeing them from a sky. आप उनको आकाश से देख रहे हो. You have got a lots of confidence. Your soul is smiling. With the same feeling, with the same emotions, with the same spirit. God is reversing everything back to you. He's sending you back. He's reversing all the things that has happened to you. You get all this feeling, all these emotions.
रिव्यू हो रही है, रिवाइंड हो रही है, द टाइम पीछे रिटर्न हो रहा है, and you are coming back to this physical body with the new you, with that lightness, that God can hear you, that Kali can hear you, Kali listen to you with that confidence. With that lightness, you are returning back to your physical body. Feel that that spirit, that soul has come back to you again with full of light. Full of power. Return back to your physical body. Take a deep breath for 9 times. Slowly rub both of your hands. I want you to put that into your eyes. Looking at your palm, slowly open your eyes. So, how are you feeling? आपको इस नई लाइफ में मैं फिर से स्वागत करता हूँ. I'd like to welcome you in this new life. Yeah, you can unmute yourself and then you can share with me. सर बहुत अच्छा रहा ये मेडिटेशन और अपने आप को कभी ये चीज हम सोचते नहीं, हमें ऐसा लगता है कि ये सारी नेगेटिव चीज है, हम अपने क्यों सोचें, बट ये सारी चीज मतलब आप देखी तो बहुत ही अलग लग रहा था, बट एक्चुअली इसके पहले 4-5 बार मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मैं बैठी और मैंने अपने आप को देखा है कि मैं अपने ही बिल्डिंग में मतलब खड़ी हूँ और नीचे देख रही हूँ तो मेरी डेड बॉडी पड़ी है. लोग ये इसके पहले मैंने 3-4 बार किया हुआ है, बट मुझे ये मालूम नहीं था कि ये इस तरह का इसे मेडिटेशन लगता है करके. पर मैं ये सोच के छोड़ देती थी कि क्यों अपने लाइफ के बारे में क्यों नेगेटिव सोचना और एंड के बारे में क्यों सोचना. तो ये सोच के मैं उस चीज को छोड़, बट बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था सर आज का. बहुत अलग एक्सपीरियंस था, बहुत अलग. मतलब मैं ऐसा भी नहीं कह सकती कि बहुत खुशी हुई देख के सर. मतलब जो सही मतलब जो मेरी रियल फीलिंग है वो मैं बोलती हूँ कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं एंड को नहीं सोचती इसीलिए, बट ये मेडिटेशन मैं करूंगी सर रोज. अनुराग बोल रहा हूँ सर. बहुत अच्छा मेडिटेशन था. एक तो जैसा उसमें था तो उसमें मुझे एक चीज पूछनी थी. जैसे मैंने अपनी बॉडीज देखी, आपने बोला दूसरे जो फीलिंग्स कर रहे हैं वो फीलिंग्स आपको पता चल रही है, ठीक है, उनकी फीलिंग महसूस कर रहे हो. तो वैसे ही जैसे आपने कहा लोगों को फॉरगिव करो, तो मुझे वैसे बोला कि मैं बोल तो रहा पर लोग सुन नहीं पा रहे, बिकॉज वो तो मुझे नहीं सुन पाएगी, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सी मी एज अ सोल व्हाट आई एम सेइंग. तो वो चीज में कैसे ओवरकम कर सकते हो. दूसरा थिंग, इवन आई सेड सॉरी टू लॉट्स ऑफ पीपल अपने आप कि भाई मुझसे गलती हो गई है लाइफ में, किसी को गलती दुख लगा तो मैंने सॉरी भी बोला वहाँ पे एंड फील रियलाइज दैट ऑल द थिंग. तो वो चीज का मुझे थोड़ा वो लगा कि मैं तो बोल रहा हूँ पर सामने और सुनेगा कैसे वो चीज.
नहीं अभी देख ऐसी है सर, जब तक आप ना इस मेडिटेशन को और भी एज कोशिश कर लीजिएगा, बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके। और आपको कल्पना करना ही है कि दे आर लिसनिंग टू योर वाइब्रेशन इन देयर माइंड, वो आपको सुन पा रहे हैं उनके दिमाग में ओके सर, एज ए स्पिरिट, है ना, ठीक है ना। सो लाइक जो बोलते हैं टेलीपैथी होती है ना, एग्जैक्टली सेम वे दे कैन लिसन टू यू एंड दे कैन डू द कन्वर्सेशन विद यू। ओके सर, दैट विजुअलाइजेशन वी हैव टू डू। हाँ, थैंक यू। भैया नमस्ते। अल्टीमेट मेडिटेशन। और जब मैं वाइब्रेशन भेज रही थी, मैं सिर्फ इतना भेज रही थी कि अपने बच्चों के और उनके बच्चों को हीलिंग जरूर सीखना और अपने कर्मास को यहाँ से कट करो और नेक्स्ट जर्नी अच्छी करना। और मैं प्रॉपर उनको ये बोल रही हूँ कि जितना आप लोगों ने सीखा है उससे और ज्यादा है यहाँ पे सीखने के लिए, उसको सीखो और अपने नेक्स्ट जनरेशन को या नेक्स्ट लाइफ को सिर्फ सुधारना है। मतलब इस चीजों में फंसना नहीं है। मैं पूरे टाइम सबको बस यही बोलती आई हूँ। पर बहुत ही अल्टीमेट मेडिटेशन था। थैंक यू सो मच। गुरुजी, मैंने तो सबको एक ही मैसेज दिया है कि लाइफ इज वेरी प्रेशियस, एंजॉय इट, लिव इट प्योरली, जितना कर सकते हो करो, जीना है जियो, बस जो अभी है यही लाइफ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम जो मेडिटेशन भी कर रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, बट मुझे पता नहीं 2-3 बार से ऐसा हुआ कि आप जो मेडिटेशन कराने वाले हैं वो मुझे दिन में मैं उसके बारे में सोच रही हूँ कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं होता, और वो शाम तक आप, आज मैं ये टॉपिक पे सोच रही थी और आपने ये टॉपिक पे मेडिटेशन करा दिया। इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग, एंड पता नहीं कहीं कुछ अलग सा ही लेसन दिमाग में घूम रहा है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच। और मैं बोलूं सर? हाँ जी। जब भी मेडिटेशन आप करवाते हैं ना तो बॉडी में पेन वगैरह शुरू हो जाता है, लेकिन ये पहली बार ऐसा था कि एकदम एंजॉय कर रही थी, बहुत मजा आया सब देखने का। करिए, मुझे पहले भी बहुत बार देखने का मन हो रहा था कि मेरे बात सब क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे होंगे, क्या कहते होंगे, सोच रहे होंगे। तो वो सब आज मैंने पहली बार फील किया, बहुत अच्छा लगा सर। मैसेज तो मैं किसी को दे नहीं पाई, शायद दूसरी बार प्रैक्टिस करके दूंगी, लेकिन वो सब देखना था, वो जो मैंने देख लिया। थैंक यू सर। दूसरे को तो मैसेज दे दिया, अपने लिए क्या मैसेज ले लिया फिर? All of them give the message to the other people, but what is the message that you get for yourself? खुद के लिए क्या मैसेज दिया आप लोगों ने कि आपकी लाइफ अगर इतनी प्रीशियस है तो आप किस तरीके से जियोगे? सर मैंने अपने लिए ही मांगी स्पिरिचुअल लाइफ मांगी और सबको हेल्प कर सको ऐसे। इस लाइफ में क्या करने वाले, मुझे वो चाहिए, अब नेक्स्ट लाइफ के बारे में नहीं। आई वांट टू हियर अबाउट दिस लाइफ। जितना हो सके उतना सबको हेल्प कर सके। मिनिमम एक्सपेक्टेशंस। सर मेरी तो एक्सपेक्टेशन ही अलग हो गई, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। मेरे दिमाग चल गया, मुझे मन में सारे टाइम ऐसे लगता है मुझे काली बनना है, मुझे काली बनना है। ये क्या सोच मेरे दिमाग में आई और हावी होती जा रही है मुझ पे रोज रोज। Sir, forgive everyone.